वो आपका भ्रम है। देखिए विधि क्या है, आप किसी तांत्रिक ओझा मौलवी के पास जाओ। ये तांत्रिक ओझा मौलवी, झाड़ फूक वाले, तंत्रमन टोना टोटका करने वाले, ये कुत्ते की मौत क्यों मरते हैं? क्योंकि नीयत नहीं साफ है। और जिसकी नीयत नहीं साफ है, तो आपने पाल लिया कुत्ता। अभी एक कुत्ता, अभी एक अखबार में आया है कि वो जिसने पाला उसकी मां को ही फाड़ के खा गया। पिटबुल था। जैसा आप सिस्टम बनाना चाहेंगे, सिस्टम तैयार है आपके साथ काम करने के लिए। तंत्र में उतरने के पहले बहुत गहरी बात है, आपको समझना है। जैसे आप होगे, शक्ति आपके साथ वैसा ही संयुक्त होकर के वैसा ही कार्य करेगी। इसमें शक्ति को कोई दोष मत देना। क्योंकि आपके पास रिवॉल्वर है। अब चाहो तो किसी को लूट लो लगा के, और चाहो तो लूटते हुए को बचा लो। ये तरीका है। रिवॉल्वर तो निर्लेप है, वो तो उसका कोई दोष नहीं है। जिस व्यक्ति के हाथ में है, जैसी नीयत है, शक्ति वैसे ही बन जाती है। फिर पता लगे वो छीन के किसी दूसरे के हाथ में रिवॉल्वर, अब वो आपके लिए काल बन गई। तो शक्ति का सदुपयोग और शक्ति का दुरुपयोग दोनों ही आपके हाथ में सुरक्षित है। शक्ति आने से पहले इसको समझ लेना है। दोनों ही अधिकार आपके पास हैं। अब इसे कैसे आपको प्रयोग करना है, दुरुपयोग करना है कि इसका सदुपयोग करना है, ये आपको तय करना होगा। वो नियत से तय होगा। Tantra means system. Tantra znamená systém. For example, when we talk vernacular Hindi or Indian languages, Tantra as suffix, if it gets attached to anything, that itself depicts the system. For example, Praja Tantra is democracy. Praja is people, Tantra is system of people. Raj Tantra is monarchy. Že tantra znamená systém a jakmile slovo tantra přidáme k jinému slovu, tak to vlastně dává význam, že to má systém, jako třeba demokracie, monarchie, je to tantra něco. And any system exists when it is without interference and without intrusion. Without intrusion. A systém existuje, pokud je bez intruze, bez zasahování. Wherever there is intrusion and crossovers, it is not tantra. Jakmile je tam nějaká intruze nebo překračování, tak už to není tantra. The system of universe, the system of nature is part of the study of tantra. Systém vesmíru, systém přírody je součástí studia o tantře. As you progress in any system, gradually you get towards top of it and acquire a lot of power, and then it is really in your hand as to how judiciously you use that power. Jakmile budete pokračovat v studiu tohoto systému, tak budete získávat síly a samozřejmě bude na vašem důkladném zvážení, jak tyto síly budete využívat. Why you have to very seriously consider this point? Because you are entering into a system where you will be bestowed with a lot of power and you have to be extraordinary. Protože ten systém je velmi nestranný. Anything that you would do, it will come back on you. Cokoliv uděláte, se vám vrátí. It would have the reaction and that would be a bit too difficult for you to withhold. Každá vaše akce vyvolá reakci a samozřejmě tato reakce pro vás může být velmi špatná. In the modern world, people have tried to misrepresent, misuse and put tantra into
put the system into a complete opposite direction without any system, where there is an intrusion, where there is an effort to go and intrude in others' existing environment. V současném světě nebo v poslední době byla tantra v podstatě zcela mylně vykládána s tím, že vlastně obsahovala intruze a narušení a vlastně to vůbec tantra nebyla. Čili ty výklady tantry jsou mnohdy mylné. As is law of nature, as is law of system, the tantra, it actually follows and is constructed upon very crystal clear, impartial and strong regimen. A ten režim, ve kterém tantra pracuje, je velmi jasný, křišťálově čistý a je to stejný jako zákon přírody. Whosoever misuse it for monetary gain or to under some kind of lust, they actually at the long run have catastrophic reaction. Kdokoliv tyto síly zneužije, tak vlastně v dlouhodobém pohledu nebo výhledu dostává zpátky až katastrofickou reakci. Although they might succeed temporarily, but the end is absolutely terrible. Krátkodobě mohou uspět, ale z dlouhodobého pohledu, ten dlouhodobý pohled je hrozný. So now it is up to you to think, put yourself into serious thought as to what you shall be doing with the tantra and the power that you will be receiving out of the practice of it. Znovu teda opakujeme, je to na vás, na vašem důkladném a hlubokém zvážení, jaké síly a jak využijete. तंत्र की व्यवस्था का उदाहरण रोज आप देखते हो दरबार में। कोई काम धक्का मुक्की से नहीं होता है। परिणाम से आप देखते हो कि गुरुजी ने कर दिया। जैसे आज सुबह ही एक लड़की बिल्कुल उसकी मृत्यु हो गई थी। हमको काफी देर बाद सूचना मिली, तो ये आंसू लेके आए फोटो की, देखो तो उसके प्राण खींच चुके थे। एक आसुरी शक्ति थी, उसने अपने मुट्ठी में उसके प्राण खींच लिए थे और वो बिल्कुल उठा के लाई गई। वो तो प्राण ही नहीं थे। एक दिन का हवन किया उसने आकर के यहाँ। उसके परिवार के लोग आए। ऑस्ट्रेलिया से आई लड़की, वो ऑस्ट्रेलिया से, जो आज अभी थी सुबह। तो कल जब हवन कर रहे थे परसों वो, तो उसने खूब तोड़फोड़ की, उठा पटक हवन कुंड में पानी डाल दिया। नहीं करना है सर, ये कोई बात नहीं। हमें सूचना मिली तो हमने फोटो से ही, जो हवन नहीं करने देना चाह रहे थे, उन्हें डिस्ट्रॉय किया और एक ब्राह्मण को संकल्प करा के उसकी ओर से ब्राह्मण को बिठा के और हवन करवा दिया। एक ब्राह्मण को बिठाया, नहीं वो कहाँ बैठ पाई, वो तो तोड़फोड़ कर रही थी, मारपीट, और हवन कुंड में आके पानी डाल दिया उसने। तो हमने कोई बात नहीं, कोई ब्राह्मण बिठा तो उसकी तरफ संकल्प कर ले और उसकी तरफ से एक दिन वाला हवन जो होता है वो कर ले। हो गया। लेकिन उसको मार के ले जाने वालों को तो लाइन लगी। अब वो जब 8 वर्ष की थी बच्ची, तब से उसके साथ सेक्सुअल जो है असॉल्ट होता था। ये बच्ची, ये सुबह मृत थी, डेड, सुबह टाइम, और ये पूरी तरह डेड थी। बस प्राण सब निकल गए थे, इसका जीवन भी इसमें नहीं था, जीवन भी जा चुका था। तो आधा घंटा लगा हमें इसमें, इसको श्वास लाने में, वापस लाने में, खींच के लाने में। और अभी हमसे मिल के गई, अभी शाम को, अभी मुफ्ती से आ रहा हूं मिल के, एकदम हंसती हुए भी, फर्स्ट क्लास खिलखिलाते हुए गई। अभी जब आई तो बोल भी नहीं पा रही थी, पूरी तरह से एनर्जी नहीं थी। फिर मैंने ब्राह्मण को बुलाया और उनका हाथ पकड़ो, इसको संकल्प जो तुम्हारे पास पुण्य है इसको ट्रांसफर करो।
तो जो एक दिन के हवन के पुण्य है वो तो बहुत बड़ा पुण्य है, इसको ट्रांसफर किया तुरंत। फिर हम इसकी एनर्जी को खींच के लाए, यमराज साथ में खड़ा। अब यमराज अपना यमराज को पता रहता है कि यहां कुछ भी हो सकता है। दिन भर में बेचारे यमराज कई बार वापस जाते हैं। तो बहरहाल सब व्यवस्था किया गया, उसका काट पीट, इसको काटो, इसको निकालो। अब अगर हम चाहें जबरदस्ती कि उसको हम जिंदा कर दें, हम नहीं कर सकते। वो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था से ये बैरिकेड काटो, यहां गड्ढा, यहां मिट्टी डालो, यहां पे पानी भरा है, यहां ब्रिज बनाओ, फटाफट पार करो झील। वो सारा करके ही आप कहीं जा सकते हो। जैसे उसको हम कोशिश कर रहे थे जिंदा करने की, तो श्राप आगे आ रहा है। श्राप क्यों? वो स्वर्ग से तिरस्कृत थी लड़की, कभी अप्सरा थी ये स्वर्ग में, ये लड़की कभी स्वर्ग में अप्सरा थी, श्रापित थी देवताओं द्वारा, नीचे आई। अब देवताओं का श्राप, अब देवता कह रहे नहीं, इसे तो मरना होगा। हम कहे ठीक है, मारो, मारना है। अब भूतकाल में जाकर के हमने इसके श्राप निकाले, श्राप का वो हिस्सा तोड़ के हमने कहीं और रखा, अरे भाई इसको अगले जन्म में दिया जाए ये श्राप, इस जीवन यात्रा में श्राप से मुक्त रहेगी। देवता संतुष्ट, हाँ ये ठीक, हमारा श्राप नष्ट नहीं हुआ। क्योंकि मरना जीना तो है ही नहीं, शरीर तो बहाना है, मरना जीना, जीवन तो कंटिन्यू है, भोग तो भोगना। तो हमने हाँ अब ठीक, अब आप करो प्रभु। ठीक, तो अब वो फिर एक श्राप आड़े आया, उनको भी किनारे रखा, वो भी संतुष्ट। अब अगर ये श्राप ना हटाए जाए तो ये लड़की कभी जिंदा नहीं हो सकती। तो सिस्टम है, अंदर आने के लिए आपको दरवाजे से आना होगा, ये दीवार तोड़ के कितनी बार आ पाओगे? As you all were witness to this incident, and Guruji explained as to what exactly Tantra means and